see the revision of previous class. So what all we have discussed in the previous class. So in the revision we will see, first we have learnt about properties of bases. 5 points. First one is taste. Next, soluble. When they are dissolved in water, they release OH minus ions. Reaction with metals. So when they react with metals, they give salt and H2 gas. On reaction with non-metal oxide. Non-metal oxides are acidic in nature, so when it reacts with non-metal oxide, it gives salt and water. So these all things we have studied in the previous topic. Then what we have studied? What is common to all acids or all bases? So what is common to all acids? All acids gives H plus ion or H3O plus ion when dissolved in water, and all bases they give OH minus ion, means hydroxide ion when dissolved in water. And here we classified them into two types. One is a strong acid, the another one is weak acid. And here also we classified into two types. One is strong base, another one is weak base. These all things we have studied in the previous topic. Then to compare the strength of acid and base, we studied about pH scale. So pH scale varies from 0 to 14. So if the pH is 0 to 6.9, if the pH is 0 to 6.9, then it is called as acid. And if pH is 7.1 to 14, then it is called as base. And if pH is 7, then that is neutral solution. Right? So we have studied this one. And here also, if pH is 0 to 3, then it is strong acid. And 3.1 to 6.9, then that is weak acid. Here also we divide into two types. 7.1 to 12, that is weak base, and 12 to 14, that is strong base. And here pH value is directly proportional to basic nature. Means if the pH value is more, the basic nature will also be more, and inversely proportional to acidic nature. Means if pH is more, then acidic nature will be less. So this is all what we have studied in the previous class. Understood all this? So it's a revision of previous topic. Now today, what are we going to see is importance of pH in everyday life. So today's topic, importance of pH. Yes, topic, importance of pH in everyday life. So first thing is acid rains. So in acid rains, what is the importance of pH? Generally animals
and plants are comfortable, they are comfortable at pH 7 to 7.8. अगर pH इस रेंज में है तो वो इजीली सर्वाइव कर सकता है, बट ड्यू टू एसिड रेन का मतलब क्या हुआ कि एसिड होगा वाटर के अंदर। अब एसिड होगा तो pH वैल्यू बढ़ेगा या कम होगा, आप सोच के बताइए। pH में एसिडिक नेचर होगा तो हमने अभी बात किया pH इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक, यानी एसिडिक नेचर बढ़ेगा तो pH वैल्यू कम होगा। सो ड्यू टू एसिड रेन्स द pH ऑफ रेन वाटर will be less than 5.6 to 5.8, 5.6 to 5.8 से नीचे होगा, and which is difficult or which makes difficult for the survival of animals or plants. It means अगर pH 5.6 to 5.8 के नीचे आ गए तो वो एसिड रेन बोला जाएगा, और एसिड रेन होगा तो एनिमल्स और प्लांट्स सर्वाइव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि एनिमल्स और प्लांट्स के लिए कंफर्टेबल pH कितना है 7 to 7.8, यानी स्लाइटली बेसिक होगा तो उसका ग्रोथ जिस तरह से होना चाहिए उतना होगा। बट अगर एसिडिक नेचर होगा तो उसका जो हार्मोनल चेंजेस होगा एनिमल्स में और प्लांट्स में भी प्रॉब्लम्स आएंगे, उसकी वजह से प्लांट और एनिमल्स का ग्रोथ रुक जाता है। Yes, that is the importance of pH in acid rains. And pH in digestive system. Importance of pH in digestive system. It means in stomach. So stomach walls. In stomach, gastric juice is secreted. Gastric juice is secreted or released, and this gastric juice contains hydrochloric acid. Hydrochloric acid is very powerful acid, and that's why the pH value is less than 1. pH जितना कम होगा उतना एसिडिक नेचर ज्यादा है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का pH कितना होगा लेस देन 1। अब ड्यू टू एसिडिटी कभी कभी हम जंक फूड खाते हैं, ड्यू टू जंक फूड और डिसऑर्डर इन डाइट, हमें डाइट खाने के टाइम अगर प्रॉपर टाइम फॉलो नहीं करेंगे, सो द सेक्रेशन ऑफ HCl increases. Secretion of HCl increases, and that's why pH decreases. pH क्या होगा डिक्रीज होगा, and that condition is called as acidity. अब काफी बार सुना होगा इनो पीते हैं एसिडिटी होगा तो एसिडिटी मतलब ये होता है आपने जंक फूड खा लिया है उसकी वजह से HCl ज्यादा सेक्रेट होगा, HCl सेक्रेट होगा तो pH वैल्यू डिक्रीज होगा, तो pH डिक्रीज होगा तो एसिडिटी होगा। एसिडिटी मतलब इरिटेशन होगा, पेट में दुखेगा थोड़ा, तो वो एसिडिटी कंडीशन बोलते हैं। सो द एसिडिटी it is treated by using mild bases, not strong bases. Mild bases like sodium bicarbonate or magnesium hydroxide etc. ये weak base पे ये यूज करेंगे, and these all are called as, जो सोडियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये सभी क्या कर रहे हैं एसिडिटी को कम कर देता है। सो दीज ऑल आर कॉल्ड एज एंटासिड, सो दे आर कॉल्ड एज एंटासिड। सो इस तरह से हम डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमारा पीएच का इंपॉर्टेंस है, समझ में आएगा। जनरली स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होगा, गैस्ट्रिक जूस के अंदर HCl होगा, उसकी वजह से पीएच लेस देन 1। आई टेल यू सिंपल फैक्ट अबाउट इट। हमारे स्टमक में इतना एसिड होगा, इतना पावरफुल एसिड, अगर वो एसिड कभी भी अगर हम निकाल के
किसी भी लकड़ी की चीज पे डालोगे तो पूरा लकड़ी जल जाएगा। इतना पावरफुल एसिड हम स्टमक में रख के घूम रहे हैं। सो हमारा स्टमक वॉल्स कितना पावरफुल का होगा सोचिएगा। सो इतना पावरफुल वॉल्स होते हैं हमारा स्टमक वॉल्स कि वो एसिड को रोक देते हैं, मतलब वो कोई हार्मफुल क्रिएट नहीं करे। अब अगर ड्यू टू एक्सेस जंक फूड या इनडाइजेशन, बहुत सारे रीजन है, जंक फूड है, इनडाइजेशन है या डिसऑर्डर इन डाइट है, उन सब की वजह से क्या होगा, HCl का क्वांटिटी धीरे से बढ़ जाएगा। अगर HCl बढ़ गए यानी pH वैल्यू कम होगा, pH कम होगा तो उस प्रॉब्लम क्या बोलते हैं, एसिडिटी बोलते हैं। और उस एसिडिटी को ट्रीटमेंट कैसे करेंगे हम, बाय यूजिंग एसिड बेस। एसिड को न्यूट्रल करने वाला क्या चीज है, बेस। बट यू शुड नॉट यूज स्ट्रॉन्ग बेस। आप बोलोगे मेरे सर ने बोल दिया है कि भाई एसिडिटी हो गई तो बेस डालना है, गलत। स्ट्रॉन्ग बेस डालो तो फिर और प्रॉब्लम हो जाएगी स्टमक में। स्ट्रॉन्ग बेस डालना होगा, क्या डालना होगा उसमें, mild bases like sodium bicarbonate or magnesium hydroxide can be used and these all act as antacid। यानी antacid का नेचर क्या होगा, MCQ में पूछ सकते हैं, what is the nature of antacid, acidic, basic या neutral। antacid का नेचर क्या होगा बताइए, they are mild bases। या ये भी पूछ सकते हैं उनका pH वैल्यू क्या होगा, उनका pH वैल्यू मोर देन 7 होगा। इस टाइप की MCQs आपको आ सकता है। ये है pH इन डाइजेस्टिव सिस्टम। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद pH इन, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन टूथ डिके, दांत सड़ जाता है, दांत करोजन हो जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। सो एक्चुअली आवर टूथ एनामल, जो दांतों के ऊपर ये कोटिंग होता है हमारे दांत पे, टूथ एनामल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट मेजर कंपोनेंट है, और भी कुछ मिक्सचर भी होता है कैल्शियम फॉस्फेट। अब सपोज ड्यू टू सम फूड पार्टिकल्स left in the tooth और शुगर पार्टिकल्स, मतलब अगर हमारा फूड में शुगर जो शक्कर होता है वो फूड आइटम्स में फूड पार्टिकल्स है, अगर आपने दांत ब्रश ठीक से नहीं किया रात के टाइम तो दे आर लेफ्ट इन द टूथ एंड दे अंडरगो बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन एंड प्रोड्यूस acid in mouth, and this acid corrodes tooth enamel, and that's why your tooth gets different shape। So अब देखिएगा कि दांत सड़ जाता है। आपने कभी बचपन में काफी बार सुना होगा, चॉकलेट या आइसक्रीम या स्वीट्स खाने से दांत सड़ जाता है, सुना आप लोगों ने। तो रीजन क्या है उसके पीछे, स्पेशली रात के टाइम कभी चॉकलेट नहीं खाना चाहिए, आइसक्रीम भी। अगर कोई खाया हो तो कंपल्सरी ब्रश करना चाहिए। क्या रीजन है, सपोज आपने चॉकलेट खा लिया और मुंह पानी वानी पी लिया है, लेकिन थोड़ा बहुत चॉकलेट की जो शुगर पार्टिकल्स है वो दांतों के बीच में रह जाता है, और रात भर क्या होगा, उसका डिग्रेडेशन होगा। किसका, शुगर पार्टिकल्स का डिग्रेडेशन। और शुगर पार्टिकल्स डिग्रेड होगा तो क्या जनरेट होगा, एसिड जनरेट करेंगे। मतलब अल्टीमेटली हमारा मुंह में आइटम जो टीथ के बीच में, दांतों के बीच में एसिड जनरेट होगा, और वो एसिड की वजह से ये जो कैल्शियम फॉस्फेट है वो डिकम्पोज जाएगा एंड योर टीथ गेट्स कोरोडेड। सो इन दैट केस व्हाट वी शुड डू इज वी यूज ब्रश। अब हमारा टूथपेस्ट जो है, हम क्या बोलते हैं, टूथपेस्ट यूज करना चाहिए। अब टूथपेस्ट के अंदर क्या होगा, टूथपेस्ट कंटेन्स माइल्ड बेस यानी वीक बेस, और ये वीक बेस क्या होगा कि जो बीच में एसिड जनरेट हुआ है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। अगर आपने एक बार ब्रश कर लिया फिर तो वहां क्या एसिड न्यूट्रलाइज हो जाएगा, देन यू विल नॉट हैव द टूथ कोरोजन प्रॉब्लम। सो अगर आप अभी की बात करें, अब सर पुराने जमाने में क्या होता था, पुराने जमाने में हमारे पास कोई ब्रश व्रश नहीं होते थे, टूथपेस्ट नहीं होते, तब वो क्या यूज करते, दातुन यूज करते, बबुल यूज करते, नीम यूज करते। अब वो सभी का देखो बिटर टेस्ट होता है। बिटर टेस्ट मतलब दे ऑल आर बेसेस, और वो बेस क्या करेगा, हमारा
जो मुंह में जो बीच में एसिड जनरेट हुआ उसको न्यूट्रलाइज करेगा, इसलिए दांत सड़ेंगे नहीं, एकदम मजबूत रहेगा। तो समझ पाया? सो टूथपेस्ट कंटेन माइल्ड बेसेस एंड दीज माइल्ड बेसेस न्यूट्रलाइज द एसिड जनरेटेड इन द माउथ एंड दैट वे दे प्रिवेंट द कोरोजन ऑफ टूथ। मतलब टूथ डिके में भी अल्टीमेटली एसिड या पीएच वाला कॉन्सेप्ट काम आता है। सो एसिड रेंज की बात कर रहे हैं हम, डाइजेस्टिव सिस्टम की बात किया, टूथ डिके भी बात किया। नेक्स्ट, इन सॉइल और हार्वेस्टिंग और प्लांटिंग। सो जनरली अलग अलग प्लांटेशन के लिए, अलग अलग फार्म्स के लिए अलग अलग कंडीशन जरूरत पड़ता है। किसी में एसिडिक कंडीशन जरूरत पड़ता है, किसी में बेसिक कंडीशन जरूरत पड़ता है, वो अलग अलग है। सपोज your plants or you can say that you need base condition for your plants. And suppose, for example, your soil is acidic soil. So your soil, आपने soil analysis कर दिया है और acidic soil है, और आपका खेत के लिए generally most of the time base conditions are preferable for optimum growth of plants. Plants के लिए base conditions बहुत requirement है, और आपका soil कौन से नेचर का है? acidic का है। तो फिर क्या करोगे आप? तो उसमें भी अपना pH काम आएगा। So the soil is neutralized by using bases, but base में भी cheaply available होने वाला base है कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड मीन्स क्विकलाइन। अब ये क्विकलाइन अगर आपने खेत में डाल दिया तो वो क्या करेगा? अभी अपना सॉइल को बेसिक नेचर में लाएगा, और बेसिक नेचर आ गया तो हमारा जो प्लांट्स का ग्रोथ है वो अच्छे से होगा। तो समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर पीएच का इंपॉर्टेंस देखिएगा, 4 पॉइंट है। एसिड रेंज में पीएच ऑफ रेन वाटर क्या होगा? लेस देन 5.6 to 5.8, उसकी वजह से प्लांट्स का ग्रोथ नहीं होगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिडिटी बढ़ जाएगा, एसिडिटी बढ़ेगा, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड यूज करना होता है। एंटासिड्स आर माइल्ड बेसिस। टूथ डिके में अपने दांतों में शुगर के डिग्रेडेशन की वजह से, फूड पार्टिकल्स की वजह से एसिड जनरेट होगा, उसकी वजह से दांत सड़ जाएंगे। एंड सॉइल में मोस्ट ऑफ द केसेस वी नीड बेस कंडीशंस फॉर सॉइल। अगर आपका सॉइल गलती से एसिडिक नेचर का है तो हम उसको ट्रीटमेंट किससे कर सकते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड से ट्रीटमेंट करोगे तो फिर वो बेसिक नेचर में आ जाएगा एंड द ग्रोथ ऑफ द प्लांट विल बी वेरी फाइन। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच। फाइन, सो यू टेक द नोट्स। So importance of pH is 4. अब नेक्स्ट हमें क्या बात करना है? सॉल्ट। हमें सॉल्ट के बारे में डिस्कस करना है। यस, अब हमारा टॉपिक है pH is over. Next we'll see salts. Yes. How salts are prepared? Salts कैसे बनते हैं वो देखना है। So salts are prepared by mixing of acid and base. And when acid reacts with base, it gives salt plus water. So here example, acid like a HCl
base like NaOH gives what? It gives, of course, acid में से H plus निकल जाएगा, base में से OH minus निकल जाएगा, and we get NaCl salt plus water. अब ये चीज, एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, थोड़ा हाई लेवल में जा रहा हूं मैं. जो Na plus है, that is called cation, and which comes from base. So base मतलब NaOH में से cation आता है, and Cl minus is called anion. This is anion which comes from acid. It comes from acid. So यहाँ देखिएगा Cl minus. So हमें जब भी salt बनाएंगे, so base में से cation आएगा, acid में से anion आता है. So इस तरह से salt बन जाता है. But we have different kind of salts. So acid में देखो 2 types है, strong acid, weak acid. Base में भी 2 types है, strong base, weak base. तो ultimately कितने combinations बनेंगे? Strong acid, strong base, strong acid, weak base, weak acid, strong base, weak acid, weak base. In totally 4 combinations. तो एक बार हमें साइड में एग्जाम्पल्स लिख लेते हैं माइंड में. सो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल कौन कौन है? एटलीस्ट 4-5 एग्जाम्पल तो पता होना चाहिए. HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड. दीज आर कॉल्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड और मिनरल एसिड नाम से बुलाते हैं इनको. वीक एसिड्स कौन है? वीक एसिड यानी कार्बन एसिड, ऑर्गेनिक कैटलिस्ट बोलते हैं उसको. लाइक वेरी फेमस वन एसिटिक एसिड CH3COOH, कार्बोनिक एसिड H2CO3, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S. So enough. These all are called as weak acids. अभी बहुत सारे लिख सकते हैं, ऑक्सैलिक एसिड भी चलेगा, H2C2O4. This is oxalic acid. Now, strong base का एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. So these all are very strong bases. Weak bases के एग्जाम्पल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH twice, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH thrice, जिंक हाइड्रोक्साइड is a weak base ZnOH twice, अमोनियम हाइड्रोक्साइड या अमोनिया NH3 भी लिख सकते हैं. NH3 को हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH से भी लिखते हैं. सो ये सभी वीक बेस है. अब टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स. सॉल्ट के बारे में तो आपने लर्न किया है. टाइप्स ऑफ सॉल्ट में मैं टेबल बना देता हूं, तो आपको इजी होगा. नेचर can say salt type, then examples बहुत सारा चाहिए हमें, then pH and then nature. Yes, let us have the list. So salt type 1, that is salt of strong acid and strong base. Strong acid and strong base. बताइए strong acid strong base से बनने वाला सॉल्ट कौन सा है? strong acid और strong base, HCl और NaOH. मैंने आपको बताया था स्ट्रॉन्ग बेस में से कैटायन लेना है, आगे वाला पार्ट, एसिड में पीछे वाला पार्ट. अगर आप बोलो सर मेरे इतना केमिस्ट्री नहीं आता है, एकदम सिंपल बताइए. सिंपल ये है, बेस में आगे वाला पार्ट लेना है और एसिड में पीछे वाला पार्ट लेना है. तो बेस में आगे वाला पार्ट कौन सा है? NaOH में Na.
HCl में Cl, तो इट मीन्स NaCl, NaCl। फिर दूसरा क्वेश्चन, KOH और H2SO4, इसमें K लेना है, उसमें SO4 लेना है। K का वैलेंसी +1 है, SO4 का वैलेंसी -2 है, तो क्रॉस करेंगे तो क्या बनेगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। और कुछ कैल्शियम और HNO3 देखते हैं। कैल्शियम लेना है, इसका वैलेंसी +2, NO3 वैलेंसी -1, तो क्या बनेगा, CaNO3 ट्वाइस, कैल्शियम नाइट्रेट एक्सेट्रा। सो दीज आर द एग्जांपल्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सॉल्ट। आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा, आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन ट्राई कर सकते हैं, मैंने तो 2-3 ही लिखा है। ऐसा जरूरी नहीं कि NaOH HCl चाहिए, NaOH H2SO4 से हो सकता है, NaOH HNO3 से हो सकता है, NaOH HClO4 से, बहुत सारे कॉम्बिनेशन है। यू कीप ऑन ट्राइंग। सो जितना ज्यादा एग्जाम्पल लिखोगे उतना आपका सब्जेक्ट क्लियर होगा, तब नए नए डाउट्स आएंगे, तब आपको क्लैरिटी आ जाएगा, इसलिए एग्जाम्पल लिखना है। और इन सभी, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस, दोनों स्ट्रॉन्ग है। अब क्या होगा, दोनों एक दूसरे से अच्छे से लड़ेगा, तो इसलिए pH वैल्यू एग्जैक्टली 7 होगा, एंड दैट काइंड ऑफ सॉल्ट्स आर कॉल्ड न्यूट्रल सॉल्ट्स। इनको क्या बोल सकते हैं हम, न्यूट्रल सॉल्ट्स। नंबर 2, it is strong acid and weak base, strong acid and weak base। strong acid weak base का एग्जाम्पल बताइए। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और HCl रिएक्ट होगा तो क्या बनेगा, इसमें क्या लेना है, बेस में आगे वाला पार्ट, एसिड में पीछे वाला पार्ट, तो मैग्नीशियम और Cl कंबाइंड होगा तो क्या बनेगा, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम और सल्फेट होगा तो एल्यूमिनियम सल्फेट, Al2SO4 थ्राइस। और जिंक और आयोडीन होगा तो, या जिंक नाइट्रेट, ZnNO3 ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट। इस तरह से बहुत सारा आप ट्राई कर सकते हैं, यू कीप ऑन ट्राइंग। अमोनियम क्लोराइड, वेरी फेमस एग्जांपल, अमोनियम क्लोराइड। सो दीज ऑल आर कॉल्ड एग्जांपल्स, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अब इसमें ज्यादा पावरफुल वाला कौन है, एसिड पावरफुल या बेस पावरफुल, एसिड पावरफुल है, इसलिए pH वाला वैल्यू <7 होगा, pH वैल्यू <7 होगा, एंड दैट काइंड ऑफ सॉल्ट्स आर acidic in nature, so they are called as acidic salts। so हमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, ये दिया जाएगा, Al2SO4 thrice, what is the nature of Al2SO4 thrice। तो आपको समझना है कि भाई ये वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से बन गया है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए pH वैल्यू <7 होगा, है आपको समझना होता है। तो ये टेबल आप जितना ज्यादा लिखोगे उतना बढ़िया होगा, बड़ा वाला लिखना, प्रैक्टिस ज्यादा करना। So next one is for weak acid and strong base, weak acid and strong base। हाँ बताओ, weak acid and strong base, ये weak acid है, ये strong base है। एसिड में आगे वाला पार्ट CH3COO, बेस में पीछे वाला पार्ट Na, यानी क्या बनेगा, CH3COO Na, which is called sodium acetate, या NaOH और H2CO3 कंबाइंड होगा तो Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, या NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, और लाइक सो मेनी एग्जांपल्स। अब अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई करना। अब इसमें पावरफुल कौन है, एसिड या बेस, बेस पावरफुल है, इसलिए इन सब में pH वैल्यू <7 होगा, एंड दैट द नेचर ऑफ दोज सॉल्ट्स इज बेसिक नेचर। and the nature is basic nature. Now last one it is, so weak acid and weak base। वीक एसिड एंड वीक बेस। अब वीक एसिड और वीक बेस आप मिक्स करके देखो,
यहाँ एसिड है, यहाँ बेस है, तो इनमें कोई भी मिक्स करके देख लीजिए, आपको जितना एग्जाम्पल लिखोगे उतना फायदा होगा। सो मैं तो अलग अलग कॉम्बिनेशन ट्राई कर रहा हूँ। मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, और एल्यूमिनियम कार्बोनेट A2CO3 थ्राइस, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। फॉर्मूला लिखना आता है ना आपको, एल्यूमिनियम का वैलेंसी 3, कार्बोनेट का वैलेंसी 2, क्रॉस करो तो A2CO3 थ्राइस। सो नेक्स्ट वन, ऐसा बहुत सारे एग्जांपल, जिंक सल्फाइड ZnS, सो मेनी एग्जांपल्स। अब इसमें क्या होगा, pH वैल्यू, इस बार pH, ये वीक एसिड है, ये वीक बेस है, तो इसमें pH कैन बी एनीथिंग, सो इट मीन्स इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड। मतलब ये नहीं बोल सकते कंपल्सरी pH वैल्यू मोर देन 7 होगा, लेस देन 7 होगा, या इक्वल टू 7 होगा, यू कैन नॉट से। इसमें किसी किसी का लेस देन 7 भी होता है, किसी किसी का मोर देन 7 होता है, इसलिए हम इसमें जनरलाइज करके नहीं बोल सकते, एक एक का चेक करना पड़ेगा, इसका अलग आंसर होगा, इसका अलग आंसर होगा, इसका अलग आंसर होगा। फिर आप पूछेंगे सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा किसका क्या आंसर है, वो तो हम आगे हायर स्टडीज में लर्न करेंगे, 11th और 12th में, भाई इसका pH क्या होगा, इसका pH क्या होगा, इसका। बट अभी फिलहाल के लिए इट कैन नॉट बी जनरलाइज्ड, सो द नेचर इज कैन नॉट बी सेम जनरल वैल्यू। तो ये हमारा सॉल्ट के बारे में है। तो सॉल्ट देखो, सॉल्ट कैसा होगा, एसिड और बेस कंबाइंड होगा तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा। सॉल्ट में कैटायन बेस में से आता है, यानी आगे वाला पार्ट बेस में से, पीछे वाला पार्ट एसिड में से। सो एसिड में हमें पीछे वाला पार्ट ही लेना है, बेस में आगे वाला पार्ट लेना है। अगर आपको ड्रॉ करना तो भी कर सकते हैं आप। हमें ये वाला पार्ट लेना होगा और बेस में आगे वाला पार्ट लेना होगा, तो इनकी कॉम्बिनेशन में बना सकते हैं। इसमें भी बेस है इसलिए आगे वाला पार्ट, और एसिड है इसलिए पीछे वाला पार्ट, ये पीछे वाला पार्ट। सो इस तरह से सॉल्ट बन जाता है। सॉल्ट 4 टाइप्स का है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड एंड वीक बेस। और इनका एग्जांपल्स है, pH वैल्यू है और नेचर, जनरल सेंस में क्या नेचर का होगा। सो ये हमारा टाइप्स ऑफ सॉल्ट के बारे में खत्म हो गया। सो वी हैव डिस्कस्ड टुडे 2 थिंग्स, एक तो pH, इंपॉर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ, एंड द सेकंड वन इज सॉल्ट एंड देयर टाइप्स। अब हमारा टेक्स्ट बुक में सॉल्ट 4 सॉल्ट्स हैं, उनका प्रिपरेशन, उनकी प्रॉपर्टीज है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऑलमोस्ट चैप्टर विल बी ओवर। सो जब जब टाइम मिले उन सबको रिवाइज करो, नोट्स खुद बनाओ, जब नोट्स खुद बनाते तभी आपको समझ में आता है। सो मेक द नोट्स, continuation we'll see in next class. Thank you guys, keep on practicing.